آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ چین نے پاکستان کے 3.4 ارب ڈالر کے کمرشل قرضے رول اوور کر دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین نے اسٹیٹ بینک کے پاس 3 سال سے جمع 2.1 ارب ڈالر رول اوور کیا ہے۔ چین نے مزید 1.3 ارب ڈالر کا کمرشل قرض بھی رول اوور کیا ہے۔ مشرق وسطی کے کمرشل بینک سے 1 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ کثیر جہتی ذرائع سے 50 کروڑ ڈالر اور موصول ہوئے ہیں۔ رول اوور اور نئے کمرشل قرض ملنے سے ملکی زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ 7 ارب ڈالر بیل آؤٹ پروگرام سے پاکستانی معیشت کو استحکام ملا ہے۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے بعد اب انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ 7 مئی کو پاک فضائیہ نے بھارتی جنگی جہاز مار گرائے تھے۔ کیپٹن شیو کمار نے گرائے گئے بھارتی جنگی جہازوں کی تعداد نہیں بتائی۔ انڈونیشیا میں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جنگی جہاز اتنے نہیں گرے جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ ساتھ یہ عذر بھی تراشا کہ بھارتی جنگی طیارے اس لیے گرائے گئے کیونکہ سیاسی قیادت نے بھارتی فضائیہ کو پاکستان کے فوجی اہداف کو نشانہ نہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ بیان سامنے آنے پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی سرکار کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا مودی سرکار نے قوم کو گمراہ کیا اور یہ بتانے میں ناکام رہی کہ آپریشن سندور میں بھارت کے کتنے جنگی جہاز تباہ ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس کا اصل فائدہ عام صارف کو پہنچے گا۔ ایپ کو کراچی سے پشاور تک متعارف کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ وزیراعظم نے بجلی کے بل سے ٹیلی ویژن فیس بھی ختم کر دی۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کا اصل فائدہ عام صارف کو ہے، اور یہ جو ایپ ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ریفارم ایک انقلابی ٹیکنالوجی ریفارم ہے۔ اس کا فائدہ ہر گھر میں ہر صارف کو جائے گا۔ اس ایپ کو کراچی سے لے کر پشاور تک گھر گھر اس کو متعارف کروائیں۔ آج میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، پی ٹی وی کی جو فی ہے اس کو میں آج ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کو کراچی سے پشاور تک متعارف کرایا جائے، تاہم پاور ڈویژن ذرائع کا کہنا ہے کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کے الیکٹرک صارفین استعمال نہیں کر سکیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا ہے کہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ سے بلنگ میں شفافیت آئے گی۔ ایپ لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں اویس لغاری نے کہا کہ میٹر ریڈر کو ایک بہت بڑا اختیار حاصل تھا کہ وہ ایک دن لیٹ ریڈنگ لے کر صارف کا بل 2000 سے 8000 کر دے۔ اوور بلنگ ایک بہت بڑا ایشو تھا پرائم منسٹر صاحب۔ پچھلے سال کے اندر صرف آپ کی حکومت نے 110 ارب روپے کی اوور بلڈ جو رقوم ہے وہ کنزیومرز کو واپس کی۔ کنزیومر فیل کرتا ہے کہ اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اس قسم کے سسٹم کے ذریعے آئندہ اس بات کو انشور کیا جا سکے گا کہ لوگوں کو کسی طریقے سے بھی ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ تو یہ میٹر ریڈر کا جو اختیار تھا، جو ایک بہت بڑا اختیار تھا، وہ اگر ایک دن دیر سے ریڈنگ کرے تو غریب لوگ 200 یونٹ سے 200 کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس سے ان کا بل 2000 سوا 2000 سے 8500 تک پہنچ جاتا ہے، جو ان کے پورے سال کے اندر کئی لاکھ روپے کا ان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی طے کر دی ہے، جس کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور 2 دیگر ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ مستقل بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر نے سینیورٹی کی منظوری سپریم کورٹ کے 19 جون کے فیصلے کی روشنی میں دی ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہوں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہوں گے، جسٹس طارق محمود جہانگیری سینیورٹی میں چوتھے، جسٹس بابر ستار پانچویں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق چھٹے نمبر پر ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینیورٹی میں جسٹس ارباب طاہر کا 7واں، جسٹس سمن رفت کا 8واں اور جسٹس خادم حسین سومرو کا 9واں نمبر ہے۔ جسٹس اعظم خان سینیورٹی میں 10ویں، جسٹس محمد آصف 11ویں اور جسٹس انعام امین منہاس 12ویں نمبر پر ہوں گے۔
खबर देंगे आपको कराची से, जहां के इलाके PECHS में ताजिर के घर में 13 करोड़ की डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई है। बहन भाई मुल्ज़मान टिकटॉकर निकले हैं। बहन भाई मुल्ज़मान टिकटॉकर निकले। मजीद जानते हैं, GN न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये क्या माजरा है? CCTV में क्या सामने आया है और वाक़ई की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? जी देखिए, बिल्कुल ये गुज़िश्ता हफ्ते का वाक़या था, जहाँ पे एक खालिद बिन वलीद रोड पे वाक़ शोरूम के मालिक सालिक के घर पे तकरीबन 5 अफराद दाखिल हुए थे, जिनमें 3 ख़वातीन और 2 अफराद थे, जिन्होंने जो कपड़े पहने थे वो बज़ाहिरी एक FIA का अफसर अपने आप को शो कर रहे थे। मुल्ज़िमान ने गन पॉइंट पे घर में दाखिल हुए थे, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मुल्ज़िमान घर में दाखिल हुआ और उसके बाद में शहरी के घर से, उसके घर की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद में कैश 13 करोड़ रुपए, इसके अलावा तकरीबन 7 से 8 मोबाइल फोन और दीगर कीमती चीजें लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करने के बाद में टेक्निकल सहूलियात की मदद से मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अंदर 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त युसरा, निमरा, शहरियार और शहरोज के नामों से हुई है, जबकि एक मुल्ज़िम ताहाल मफरूर है। पुलिस जो हमारी तफ्तीश हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि जो मुल्ज़िमा युसरा है ये प्रोफेशनल मॉडल भी रह चुकी है और मुख्तलिफ छोटे लेवल के जो ड्रामाज हैं उसके अंदर एक्टिंग भी करती है। इसके अलावा दोनों बहन भाई भी हैं, ये दोनों बहनें भी हैं, इनमें इनका एक भाई भी शामिल है जो कि टिकटॉकर भी हैं। इसके अलावा मुल्ज़िमान जो है वो पाकिस्तानी और गैर मुल्की आर्टिस्टों के साथ इनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। प्रैक्टिकली ये लोग दुनिया में अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और एक कल्चर लवर और आर्टिस्ट के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करते थे, लेकिन साथ ही साथ मुल्ज़िमान की अब तक की जो तफ्तीश निकली है कि ये इतनी बड़ी वारदात में मुलविस निकले हैं। तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि अब इनका बैक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि इसके अलावा ये कितनी मुतादिद वारदातों में मुलविस रहे हैं, और ताकि उनका भी रिकॉर्ड जो सामने लाया जाए और मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए ज़ीशान। हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर पार्टी क़यादत की सतह पर बातचीत हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में राबता हुआ है। वफाक और पंजाब की हुकूमतों में शमूलियत के मामले पर पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक लचक दिखा दी है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी के मुताबिक इस मामले पर मजीद बातचीत का भी इम्कान है। आला सतह के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत में शमूलियत के मामले पर किसी हद तक लचक दिखाई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत में शमूलियत के मामले पर मजीद बातचीत का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान ने GN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत में शमूलियत की पेशकश होती रहती है। पीपल्स पार्टी के तमाम फैसले CEC में होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि आइनी ओहदे लेने हैं, हुकूमती ओहदे नहीं लेने। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारा मुल्क इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, हमने उसे तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन को भी हमने तस्लीम नहीं किया। 2018 में इलेक्शन हुए, हमने कहा धांधली हुई है और हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। हमने 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असम्बलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। मुल्क चलेगा, आईन चलेगा, कानून चलेगा, अवाम चलेंगे, अवाम का एतमाद चलेगा। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क पे कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं। दहशत गर्दी, कत्ल, अगवा बराए तावान समेत 23 मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िम नवाजिश अली और एक और मुकदमे में मतलूब मुल्ज़िम हारून इकबाल को इंटरपोल रेड नोटिस पर स्पेन से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुल्ज़िमान पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने हालिया दौरा स्पेन में हिस्पानवी वज़ीर दाखिला मार्लास्का ग्रेंडे से मुलाकात में मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया था।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دریائے سوات میں ڈوبنے والے ایک اور بچے کی لاش 4 سدہ سے نکال لی گئی ہے، تعداد 12 ہو گئی۔ ایک بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ادھر ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا کنارے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مزاحمت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق دریائے سوات میں ڈوبنے والے ایک اور بچے کی لاش 4 سدہ سے برآمد کر لی گئی ہے۔ بچے کا تعلق بردان سے بتایا جا رہا ہے۔ اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ریسکیو کی جانب سے ڈسکا سے تعلق رکھنے والے ایک اور بچے کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر آپریشن تیسرے روز بھی جاری ہے۔ 2 روز قبل دریا کے کنارے ناشتہ کرنے اور سیلفیاں لینے والے 17 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ 4 کو بچا لیا گیا تھا، جن میں سے 10 افراد کا تعلق سیالکوٹ، 6 کا مردان اور 1 شخص سوات کا رہائشی تھا۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ آپریشن کے خلاف دریائے سوات کے قریب قائم ہوٹل مالکان نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں امیروں کو نظر انداز جبکہ غریب لوگوں کے ہوٹلوں کو گرایا جا رہا ہے۔ پولیس نے مزاحمت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ آپریشن میں کسی قسم کی مزاحمت برداشت نہیں کی جائے گی۔ احتجاج کرتے ہوئے ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ آپریشن کا آغاز سب سے پہلے تجاوزات میں شامل بااثر افراد کے ہوٹل سے ہونا چاہیے۔ ہوٹل مالکان کے پاس عدالتی دستاویزات موجود ہیں اور عدالت کے نوٹس کے بغیر اچانک کارروائی افسوسناک اور غیر قانونی ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کی مرکزی شاہراہیں سے پانی تو کلیئر ہو گیا، لیکن کئی اندرونی علاقوں اور سڑکوں کی صورتحال ابتر ہے، جہاں کچھ علاقوں میں ابھی بھی پانی سڑکوں پر موجود ہے۔ وہیں بارش کے باعث سڑکوں پر پڑنے والے بڑے بڑے گڑھے شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے کرن خان کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد شہر کی مرکزی شاہراہوں سے تو پانی کی نکاسی ہو گئی ہے، لیکن شہر کے مختلف علاقوں کی اندرونی گلیوں اور سڑکوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ کہیں سیوریج کے مسائل سامنے آ گئے ہیں تو کہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزرنا شہریوں کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح کراچی کے علاقے گارڈن میں اب تک پانی سڑک پر موجود ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے ہم تو خوار ہیں، وداؤٹ بارش بھی پانی کی لائن پھٹی، گٹر لائن پھٹی، ہم 3 دن ایسے ہی رہے۔ ابھی آپ لوگ میڈیا آئے نا، ابھی 2 ٹرک آ جائیں گے، یہاں سے کھول کے چلے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ سیوریج کا ہی ہے اپنا، یہ بارشوں کا ہی ہے، یہ ڈھلان ہے، یہاں پہ ہر دفعہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بائکیں سب کچھ بند۔ ہم لوگ کی یہ گٹر لائن تقریباً 6 مہینے سے سال ہو گیا بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 2 فٹ کے گڈھے بڑے ہوئے ہیں، بچے بھی گرتے پانی میں، عورتیں بھی گرتی ہیں، اور یہ حال ہے آپ کے سامنے۔ اولڈ سٹی ایریا میں بولٹن مارکیٹ، نیو چالی، گرو مندر اور لیاری سمیت کچھ علاقوں میں تاحال بارش کا پانی موجود ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں ہر بارش میں یہی صورتحال ہوتی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں گیس کی پائپ لائنز بچھانے کے لیے کھودی گئی سڑکوں کی وجہ سے مختلف علاقوں کی سڑکوں کی صورتحال خراب تھی، تو بارش کے بعد وہ مزید ابتر ہو گئی ہے۔ کیمرامین ناصر علی، ذیشان اقبال اور جاوید عمرانی کے ساتھ کرن خان، جیو نیوز کراچی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ گرین کریڈٹس پروگرام کے تحت سنگل یوز پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے لیے پلاسٹک وینڈنگ مشینری نصب کی جا رہی ہے۔ مشین میں 1.5 لیٹر والی 20 بوتلیں اور ½ لیٹر کی 40 بوتلیں ڈالیں تو اس کے بدلے میں 1000 روپے ملیں گے۔ رپورٹ کر رہی ہیں ام فروا۔ سنگل یوز پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا نجی کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ نجی کمپنی چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے مقامی طور پر تیار کی گئی مشینیں آئندہ ماہ لاہور کی 4 بڑی جامعات میں نصب کرے گی۔ شہر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں بھی ایسی مشینیں لگائی جائیں گی۔ یہ مشین 2 خانوں پر مشتمل ہے۔ بٹن A دبائیں اور پلاسٹک کی بوتل اس میں ڈالیں، پھر اپنا فون نمبر درج کریں اور بٹن B دبا دیں۔ مشین کی سکرین پر گرین کریڈٹ ظاہر ہوں گے، جسے ایپ کی مدد سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
निजी कंपनी के चेयरमैन गुलफाम आबिद के मुताबिक रोजाना 500 टन प्लास्टिक बोतल का कचरा होता है। मशीनरी की मदद से प्लास्टिक की बोतलें और सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तन रिसाइकिल किए जाएंगे और उनसे फुटपाथ, सड़कों के पैचवर्क और ईंटें बनाई जाएंगी। मेन पर्पस यही है कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके जो इको ब्रिक फैसिलिटी लग गई है हमारी सुंदर के अंदर, वहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाए इको ब्रिक के अंदर। ये कमर्शियल स्केल पे पाकिस्तान में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से लगने जा रहा है। गुलफाम आबिद का कहना है कि 1.5 लीटर की 20 बोतलें और हाफ लीटर की 40 बोतलें मशीन में डालने पर 1000 रुपये फौरी कैश मिलेंगे। अगर आप 1.5 लीटर बोतल की बात करें तो 20 बोतल अगर आप एम्प्टी इसमें डालती हैं तो इट बिकम्स 1 kg, और सिमिलरली अगर हाफ लीटर की बात करते हैं तो 40 बोतल्स डालें तो इट बिकम्स 1 kg। 1 kg ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू जो अभी मिल रहे हैं इज इक्विवेलेंट टू 1000 रुपीस। ग्रीन क्रेडिट्स में सिर्फ आम शहरी ही नहीं बल्कि लाहौर के 18,000 कबाड़िये भी मुस्तफीद हो सकेंगे। वो ऐप के जरिए राब्ता करेंगे और कंपनी मुलाजिम खुद जाकर उन्हें रकम देकर बोतलें लेगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के अजला, मूसाखेल, बारखान और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनसे सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा है। मकानात गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 फीट रिकॉर्ड की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची में जमात इस्लामी का हक छीन कर एक मेयर मुसल्लत किया गया। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि अब तक वो यही समझते थे कि पीटीआई के 32 चेयरमैन ने दबाव की वजह से वोट नहीं डाला था। आज पीटीआई के वो 32 लोग कह रहे हैं कि हमें पीपल्स पार्टी पसंद है। हमारे हक पर भी बहुत बड़ा डाका डाला गया। पहले कराची में मेयरशिप पर डाका डाला और जाली तरीके से वहाँ मेयर को यहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया, और पीटीआई के 32 अफराद ऐसे थे जिन्होंने अब खुद, हम तो उनको आज तक यही कह रहे थे कि उन पर दबाव होगा जिसकी वजह से वो नहीं आए, लेकिन अभी उनके लोगों ने ये बात बता दी है कि नहीं, दबाव से ज़्यादा उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद बहुत है, तो जिसकी वजह से वो 32 लोग नहीं आए थे और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर मौजूद रहे। तो अगर पीटीआई के 32 लोगों ने ये काम किया तो अब ये पार्टी की तरफ से भी देखने की बात है कि वो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या हुई है और उनकी एक्सपल्जन की पोजीशन क्या है। डीएचक्यू अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात का मामला, इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। टीचिंग अस्पताल साहिवाल और महकमा सेहत पंजाब की टीम ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी कमेटी 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। मुराद खान नासिम की रिपोर्ट। डीएचक्यू अस्पताल पाकपतन में 16 जून से 22 जून के दौरान 20 बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 19 जून को अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 5 बच्चों की अमवात वाक़या हुई। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने नोटिस लिया और 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। एमएस डॉक्टर अदनान गफ्फार के मुताबिक 15 बच्चे नौमौलूद थे जो प्राइवेट अस्पतालों से भिजवाए गए थे। 3 बच्चों की होम डिलीवरी थी, जबकि एक 5 साल बच्चे की हलाकत सांप के काटने से हुई थी। ज़्यादातर जो है प्राइवेट क्लिनिक से और बाहर से बच्चे रेफर होकर हमारे पास आए। प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है, डॉक्टर्स ने अटेंड किया है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी है। इस हवाले से जो है ना हमने अपनी भी इंटरनल एक इंक्वायरी की थी, वो भी हमने रिपोर्ट भिजवाई थी। ये बच्चे निगलेक्ट नहीं हुए, इनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हुई है। जहां बहक होने वाले बच्चों के वर्सा ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्जाम लगाया है। टीचिंग अस्पताल साहिवाल और महकमा सेहत पंजाब की टीम 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। साहिवाल से वहीद गनी के साथ मुराद खान आसिम, जियो न्यूज़, पाकपतन। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि लेबर कोर्ट्स मजदूरों पर होने वाले जबर को मजीद बढ़ाएंगे। तफसीलात जानते हैं वकास आलम मंगारिया से। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से कराची आर्ट्स काउंसिल में लेबर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें HRCP के वाइस चेयरमैन गाजी खिजर ने भी गुफ्तगू की। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की रहनुमा जहरा खान ने कहा कि कॉलोनियल दौर ख़त्म नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में बैठे अफराद अपनी मराद बढ़ा रहे हैं और हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। पहले ही ठेकेदारी निज़ाम है और ऊपर से लेबर कोड्स कानूनी तौर पर पास हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लेबर कोड है ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये तो चले हमें पता चल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कानून अगर बन गया एक दफ़ा
तो आप जो मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के, या लिविंग वेज की बात कर रहे हैं, तो बहुत दूर की बात है फिर। NTUF के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर का कहना था कि मजदूर अपने जबर के बारे में आगाह हैं और इस मुल्क में निज़ाम सिर्फ जबर का है। लेबर कोर्ट्स हमारे शोर मचाने के बाद रोका गया है, वरना अगर ये मंजूर हो गए तो गुलामी रेगुलराइज हो जाएगी। ILO का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक ब्यूरोक्रेसी करप्ट लोग बैठे हुए हैं और सरमायादारों के साथ मिलकर मजदूरों को धोखा दे रहे हैं। तकरीब में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की और लेबर कवानीन पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर और गिरदोनवा में गर्दालूद आंधी और शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक पंजाब भर में बारिश और आंधी से 8 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हुए। तूफ़ानी बारिश से लेस्को के 220 kV के 2 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, जिससे लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। तफसीलात इस वक्त आपको बता रहे हैं हुमा मसरूर बुखारी की रिपोर्ट में। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के कई शहरों में सुबह ही से शदीद गर्मी और हब्स के बाद दोपहर को आसमान पर काले बादल छा गए। उसके साथ गर्द आलूद हवाएं चलना भी शुरू हो गईं। देखते ही देखते 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफान ने लाहौर समेत दीगर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कई मकामात पर दरख्त गिर गए। काले बादल जमकर बरसे और तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में बंद रोड पर बिलबोर्ड मोटरसाइकिल सवार खानदान पर गिरने से शौहर जाँ बहक, जबकि बीवी और बेटा जख्मी हो गए। दरोगे वाला में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि कटार बंद रोड पर दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। शेखपुरा के गांव खानपुर में घर की दीवार गिरने से 10 साला बच्चा, जबकि कोट अब्दुल मालिक में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। नौशेरा बरका में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, जबकि गुजरांवाला के गाँव नंदीपुर में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। फिरोजवाला, कसूर, गुजरांवाला, ननकाना साहब और शेखपुरा में बारिश और तूफान के बाइस दीवारें और छतें गिरने समेत दीगर वाक़यात में 27 अफराद जख्मी हुए। तूफान और बारिश से 220 kV ग्रिड स्टेशन काला शाह काकू और बंद रोड बंद हो गए, जिससे लाहौर के मुतादिद इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। लेस्को चीफ रमजान भट्ट के मुताबिक इससे 132 kV सिस्टम मुतासर हुआ था, ताहम लेस्को के तमाम मुतासर स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गए हैं। फारूक अहमद के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिश और आंधी से मुताल्लिक़ इमरजेंसीज में 94 अफराद जख्मी और 24 जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और उसके गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी का इम्कान है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़, लाहौर। ज़हनी दबाव से निजात के लिए महंगी अद्वियात और इलाज की ज़रूरत पेश आती है। ताहम लाहौर के एक योगा मास्टर ने खुद को ज़हनी दबाव से महफूज रखने के लिए एक अनोखा नुस्खा बताया है। वो नुस्खा क्या है, ये जानने के लिए देखते हैं दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट। जिम में एक्सरसाइज और पावर लिफ्टिंग से आपका वेट तो कम हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं। और अगर आप स्ट्रेस एंग्जाइटी को दूर भगाना चाहते हैं तो आपको योगा करना होगा। लेकिन लाहौर के तारीखी शालामार बाग में ऐसी अनोखी योगा होती है जिसको देखकर ही आपका स्ट्रेस दूर तक भाग जाता है। ये क्या है और लाफ्टर थेरेपी क्या है, प्लस स्ट्रेस को मुंह कैसे चढ़ाना है, आइए आपको। महंगे और एस्थेटिक ट्रीटमेंट की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बोटॉक्स की ख्वाहिश हो या झुर्रियों का मसला, पावर योगा की ये टेक्निक आपके चेहरे पर डिंपल और सुर्खी लाएगी। ये दावा है लाहौर के शालामार बाग में योगा करवाने वाले ट्रेनर का। योगा ट्रेनर मोहम्मद जुल्फकार लाफ्टर थेरेपी इसलिए करवाते हैं ताकि मियाँ बीवी और सास बहू का तनाज़ा ना हो। लोग आते हैं, वतीन खासकर आती हैं डिप्रेशन में, ठीक है ना, उनको खुश करने के लिए। किसी का सास के साथ झगड़ा होता है, कि मियाँ के साथ होता है, कभी भाई के साथ होता है, किसी न किसी तरीके उसका झगड़ा चलता है। उनको खुश करने के, डिप्रेशन से निकालने के लिए हम ये लाफ्टर आसन करते हैं। योगा ट्रेनर मोहम्मद जुल्फकार का कहना है कि पावर योगा में ज़बान को बाहर निकाल कर जिस्म की सारी कुव्वत लगाकर चीख मारने से मसाम तो खुलते हैं, साथ साथ जिस्म को तवानाई और ताजगी। आपने ये चीज़ें खींचनी है तो आपके चेहरे के ऊपर खड्डे पड़ेंगे, खूबसूरती है ये ऐसे, ठीक है जी। फिर दूसरी देखें, ये आप मेरी गौर से देखें, आपके यहाँ खड्डे पड़ेंगे, खुश
योगा ट्रेनर एजाज अली कहते हैं कि मेडिकल साइंस भी अब ये मान चुकी है कि अगर दिन में 4 बार कहके लगाए जाएं तो जिंदगी के अय्याम बढ़ जाते हैं। आज मेडिकल साइंस ये कह रही है कि जिसने 4 मरतबा कहका लगा के हंस लिया वो उसके लाइफ और बढ़ जाती है। अलस सुबह शालामार बाग में ये मुनफरिद योगा करने वालों का कहना है कि इस वर्जिश से वो पूरा दिन तरोताज़ा रहते हैं। मुस्तकिल वर्जिश से जिस्मानी बीमारियां भी दूर हुई हैं। योगा करते हैं तो इससे हमारी जिस्म में पूरी सारा दिन जो है 24 घंटे बहुत अच्छा गुजरता है। हमारी बॉडी रिलैक्सेशन हो, हमारे मसल रिलैक्स हो, ताकि हम अच्छा वर्क कर सकें और लोगों के साथ जब हम फ्रेश होते हैं तो लोगों के साथ हमारा बिहेव अच्छा होता है। योगा ऐसा एक कदीम आर्ट है जो दुनिया में तेज़ी से मकबूल हो रहा है और इससे ज़हनी जिस्मानी सुकून मिलता है। मुझे 2 साल हो गया ये ज्वाइन किए हुए और मैंने आज तक मेडिसिन नहीं खाई सिवाय शुगर के, और जब मैं शुगर की भी एक्सरसाइज करके थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करती हूँ तो मेरी शुगर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल रहती है। कपाल भारती कार्डियो और पट्टों की लचक बढ़ाने की वर्जिश का इम्तिजाज इस पावर योगा का हिस्सा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर आपकी रूटीन में कोई ऐसी सरगर्मी शामिल हो जिसमें आप कुदरत के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकें तो डिजिटल डिटॉक्स के साथ ये आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत मुतासर कुन सरगर्मी है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।